ஓம் சாய்ராம். சாய்ராம் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே அவங்களுடைய வீட்டை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த வீடு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிரடியில் இருக்குது. இந்த வீடு வந்து பாபா இருந்த காலத்துலேருந்து ரொம்ப பழமையான வீடு, இன்னும் பத்திரமா வச்சுருக்காங்க. சில ரெனோவேஷன் ஒர்க் போய்கிட்டு இருக்கு. காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே அப்பா ஜாக்லே மகள்ஷாபதி இவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா பாபா ஷிரடிக்கு வந்தப்போ அவர்கிட்ட போனவங்க முதல் பக்தர்கள் அப்படின்னே நம்ம சொல்லலாம். அப்போது காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே என்ன பண்ணுவார்னா பாபாவுக்கு வந்து ஒரு க்ரீன் கலர் கஃப்னியை கொடுத்துருப்பார். ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு துணி வியாபாரி. அப்போ க்ரீன் கலர் கஃப்னியை கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா பாபா வந்து அவருடைய அன்புனால் அந்த க்ரீன் கலர் கஃப்னியை ஒரு நாள் போட்டுட்டு அவர் வந்து அதுக்கடுத்து போடவே மாட்டார். பாபா மகா சமாதியை அடைஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அந்த க்ரீன் கலர் கஃப்னியை என்ன பண்ணாங்கன்னா பாபாவுடைய சமாதியிலே வச்சு அந்த க்ரீன் கலர் கஃப்னியையும் உள்ளே வச்சுருவாங்க. இப்படிப்பட்டவர் காஷிராம் ஷிம்பி. இவருடைய பையன் பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே. இப்போ நீங்கள் படத்தில் பார்த்துக்கிருக்கீங்களே இவர் தான். இந்த பாலா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானேவை பற்றியும் சச்சரிதத்தில் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்மளுடைய ராமச்சந்திர தாதா பாட்டில் கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா பாபா சொல்லியிருப்பார், தாத்தியா கோட்டை பாட்டில் வந்து நம்மளை விட்டு போக போகிறான் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பார். அவருடைய இறப்பை பற்றி சொல்லியிருப்பார். அப்போது ராமச்சந்திர தாதா பாட்டில் என்ன செஞ்சுருப்பார்னா பாலா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே கிட்ட தான் சொல்லியிருப்பார். இந்த பாலா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே யாருன்னா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானேவுடைய பையன்தான் பாலா காஷிராம் ஷிம்பி மிரானே. இவங்களை பற்றி சொல்லணும், இவங்களுடைய ரிணானுபந்தத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய இருக்குது. ஆனால் இப்போ இருக்கிற இந்த வீடியோவில் வந்து என்னால் சொல்ல முடியாது. பட் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த வீட்டோட ஜென்ரேஷன் காஷிராம் ஷிம்பி மிரானேயோட ஜென்ரேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் பாபாவுக்கும் இருக்கிற ரிணானுபந்தத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இதை ஒரு எபிசோடாக அடுத்த இதில் நம்ம செய்ய போகிறோம். ஜெய் சாய்நாத். नमस्कार। शीपी मिराने साईं बाबा के परम भक्त काशीराम शिंपी का मैं और पोता, मेरा 5th जनरेशन है। यही घर पे काशीराम शिंपी, उनके पुत्र बाला शिंपी और आगे की जनरेशन हम यहाँ रहते हैं। साईं बाबा तकरीबन 150 साल पहले शिरडी में आए, तब जिन गिने चुने लोगों ने साईं बाबा को पहचाना उनमें खंडवा मंदिर के पुजारी महासापति, उनके 2 मित्र काशीराम शिंपी और अप्पा जागले, ये बाबा के पहले 3 भक्त हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी भर बाबा की सेवा की। स्पेशली काशीराम शिंपी कपड़े बेचने का व्यापार करते थे। घोड़े के ऊपर व्यवसाय करने के पहले द्वारका में भी जाकर बाबा का दर्शन लेके घोड़े पर बाज़ार जाते थे कपड़ा बेचने के लिए, और बाज़ार से आने के बाद बाबा को मिलते थे द्वारका में, और जो कुछ कैश है, बिजनेस जो हुआ है, वो बाबा को ऑफर करते थे। बाबा उसका काउंटिंग करते थे। वेरियस कॉइन होते थे उस ज़माने में। ये तकरीबन 125-150 साल पुरानी बात है। और बाबा उनमें से एक चवन्नी लेते थे। चवन्नी लेने का कारण धुनी की लकड़ी या चिलम की तम्बाकू के लिए है। ये रूटीन चलता था। मगर कुछ दिनों के बाद काशीराम के मन में ऐसा आया कि बाबा सबको पैसा बांटते हैं मगर मुझसे लेते हैं। तो बाबा ने एक दिन पूरा जो उनका पैसा था वो पूरा रख लिया। काशीराम जी को बहुत आनंद हुआ कि महाराज ने मेरी पूरी दक्षिणा रख ली। ऐसे करते करते बाबा ने सिर्फ डिमांड चालू किया कि दे दक्षिणा दे दक्षिणा। तो ये देते गया। यही घर है, घर के बर्तन बेच के लोगों के उधार लेके बाबा को दक्षिणा दी। मगर एक लिमिट होता है। तो बाद में थक गए, और बाद में दिमाग में आया कि ये अपनी एक गलती थी, कि एक अहंभाव मन में आया था कि मैं बाबा को दक्षिणा देता हूँ। तो बाबा के चरण छुए, तब से काशीराम की परिस्थिति नॉर्मल हुई। आगे और एक ऐसा किस्सा है कि बाबा का द्वारका में दर्शन लेके काशीराम जी घोड़े के ऊपर बाजार के लिए गए। नाउर बोल के गाँव है। रास्ते में बड़े डकैतों की टोली आई। तो इनके पास आने के बाद इन्होंने जो कपड़ा है, पैसा है, वो दे दिया। मगर एक छोटा पाउच था, वो देने के लिए
मना किया तो डकैतों ने उनके चेहरे के ऊपर तलवार मार दी। ये घायल हो गए, नीचे गिर गए, बेहोश हुए। एट द सेम टाइम जब ये वाकया हो रहा था, चावड़ी और द्वारका माई के बीच में जो एंट्रेंस है वहाँ आके बाबा जोर जोर से काशीराम का नाम लेके चिल्लाने लगे। तो गांव वाले लोग बोले क्या हुआ, 1 घंटा हुआ है, काशीराम तो दर्शन लेके घोड़े के ऊपर गया है। तो लोगों के ध्यान में नहीं आया, मारो काटो बचाओ, तो लोगों के ध्यान में नहीं आया। मगर वहाँ क्या होता है, जैसे ही काशीराम तलवार के फटके से गिर गया, घायल हुआ, बेहोश हुआ, तो चोरों ने वो जो पाउच था वो पाउच देखा तो उसमें शक्कर थी। बाबा के समकालीन जानकीदास और देवीदास, ये 2 संत हनुमान टेम्पल में रहते थे। तो जानकीदास जी ने काशीराम को बताया था कि कहाँ भी काली चींटी हो वह उनको ये शक्कर खिलाओ। तो ये शक्कर थी। चोरों ने देखा ये शक्कर है, फेंक दी और तलवारें नीचे रख के जो कपड़े थे कीमती उसका पैकिंग करने लगे। काशीराम तो बेहोश थे। काशीराम को होश आई, पूरी सिचुएशन देखी और वही तलवार लेके 2 चोरों को मार के सर को पट्टी बांध के द्वारका में आए और बाबा के पास आए। तो तब लोगों के दिमाग में आया कि ये काशीराम वहाँ मुसीबत में था, उसीलिए बाबा का यहाँ खेल चालू था। बाद में खुद ने साईं बाबा ने मरहम पट्टी की और उनका जो घाव था, जख्म थी, वो अच्छी हुई। शुरू से बाबा के भक्त थे। बाबा का फकीरी अवतार देख के काशीराम ने बाबा को हरी रंग की कफनी सिला के दी। बाबा ने उनका प्रेम देख के जिंदगी में एक ही बार वो हरी रंग की कफनी पहनी और जिंदगी भर अपना जो कुछ सामान था उसने वो संभाल के रखी। जब 15 अक्टूबर 1918 को बाबा का निर्वाण हुआ और बाबा को जब बूटीवाड़े में समाधिस्थ किया तब वो कफनी भी उनके साथ समाधिस्थ की गई। मगर बाबा का निर्वाण तो 1918 में हुआ, मगर काशीराम जी बाबा के पहले 10 साल गुजर गए। तो आज भी हमारी जो सेवा है, जो हर रोज़ दोपहर 12 के आरती के पहले भोग चढ़ाते हैं, वो सेवा आज भी हमारे परिवार की शुरू है। कट कीजिए। 150 साल पहले बाबा शिरडी में आए, द्वारका माई मस्जिद में पूरी ज़िंदगी बिताई, अनेकों चमत्कार किए, फिजिकली चमत्कार भी है। मगर उससे बावजूद 100 साल पहले जो पढ़े लिखे लोग थे, जैसे दादा साहब खापरडे, बैरिस्टर दादा साहब खापरडे है, दीक्षित है, दाभोलकर है, तो ये लोग पढ़े लिखे थे, बड़े सरकार में बड़े पोस्ट पर अफसर थे। तो वो लोग बाबा के सेवा में कैसे आए, तो अलग अलग उनको अनुभूति मिली, चमत्कार हुए उनकी ज़िंदगी में। तो उस ज़माने से पढ़े लिखे लोग और जो बूटी हैं नागपुर के, वो तो नौकोट नारायण थे, तो वो खापरडी जी के कारण बाबा के सेवा में आए। उन्होंने उस ज़माने में बूटीवाड़े का निर्माण किया। आज जो बाबा का समाधि मंदिर है वो नागपुर के बूटी जी ने अपने पैसों से जगह लेके कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये क्या खासियत थी, साईं बाबा ये ताकत क्या थी, शक्ति क्या थी। तो जैसे दादा साहब खापरडे है, उन्होंने अपनी डायरी लिखी है। जो बाबा साहब तरखड़ है, उन्होंने भी अपने अनुभव लिख के रखे हैं। तो खापरडी जी का मैं आपको बताऊंगा। खापरडी जी की पत्नी को माइग्रेन का तकलीफ था। उनके बाबा साहब के पिता डॉक्टर थे, मगर माइग्रेन की उनकी तकलीफ दूर नहीं हुई। तो वो बाबा के पास शिरडी आए। बाबा साहब खापरडे, उनकी पत्नी और उनका ज्योतिन्द्र नाम का लड़का। तो बाबा ने उनकी पत्नी को विभूति लगाई तो उनका माइग्रेन उसी पल में बंद हुआ
ये तो बाबा का फिजिकली चमत्कार है, मगर असल में जिस चीज़ के कारण उस जमाने में सैकड़ों पढ़े लिखे लोग बाबा की भक्ति में क्यों लगे, तो तरकड़ जी का उदाहरण बहुत बड़ा है। बाबा ने वो जो ज्योतिन्द्र है, 16 उम्र थी, उनको बताया कि आपने 2-3 महीने पहले मुंबई में एक फ़कीर को एक सिक्का दिया था। उस सिक्के के ऊपर कौन सी ईयर है, सिक्का किस ढंग का है, अपने कफनी से निकाल के वो सिक्का ज्योतिन्द्र को दिखाया। तो ज्योतिन्द्र बाबा साहब तरखड़ अचंभित हो गए। ये 100 साल पुरानी बात है। उस ज़माने में ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था। तो ये इस ढंग के चमत्कार उस ज़माने में भी लोगों के साथ हुए। आज भी सालाना 2.5 करोड़ से ज़्यादा सभी जाति धर्म पंथ के श्रद्धालु बाबा के चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ चमत्कार होता है। क्या चमत्कार होता है तो हम हर एक के साथ तो रूबरू नहीं हो सकते, मगर चमत्कार के सिवाय नमस्कार नहीं है, ये यहाँ की भीड़ देख के लगता है।